تو یہاں پر کس طریقے کی رول چلتا تھا، کس طریقے سے یہاں پر حکمرانی چلتی تھی، گورنمنٹ چلتا تھا. یہاں پر دو قسم کے گورنمنٹ ہوتے تھے، دو قسم کے حکمرانی ہوتے تھے. ایک کنگ ہوتا تھا، کراؤنڈ پرسن ہوتا تھا، ایک نون کراؤنڈ رول ہوتا تھا. یہ کراؤنڈ جو رول تھا وہ اکثر یمن میں، سیریا میں اور عراق میں ادھر اس طرف ہوتا تھا، اور وہاں پر گھسان جو کنگ تھے وہ وہاں پر رہتے تھے اور وہاں پر بادشاہیت ہوتا تھا. اور اگر ہم بات کریں مکہ میں، ادھر سعودی عربیہ میں، تو یہاں پر اکثر کیا ہوتا تھا، یہاں پر چیفٹین سسٹم ہوتا تھا، سربراہی ہوتا تھا. یہاں پر قبیلے کے سربراہ ہوتے تھے اور ان کے کنٹرول میں سب کچھ ہوتا تھا. وہ جو بھی کہتا تھا لوگ اس کو فالو کرتے تھے اور اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا تھا، اس کو لوگ بہت رسپیکٹ کرتے تھے کنگ کی طرح، بادشاہ کی طرح. تو یہ دو قسم کے جو رول ہوتے تھے، حکمرانی ہوتے تھے، ایک بادشاہت اور ایک چیفٹین سسٹم ہوتا تھا. ابھی آتے ہیں کہ یمن میں کس طریقے سے بادشاہت ہوتی تھی. یمن میں شیبہ کے نام کا قبیلہ ہوتا تھا. وہ اس کے مختلف نیشن، اس کے مختلف قبیلے اس یمن میں 1300 BC سے لے کر 115 BC پر اس یمن پر انہوں نے حکمرانی کی. انہوں نے مارب آف ڈیم جو کہ بہت مشہور ڈیم تھا وہ انہوں نے بنایا. اور پھر اس کے بعد ہمیاریہ، یہ ہمیاریہ جو کہ ہمیار تھا، کودا ٹرائب تھا، کیتانین ٹرائب تھا، قبیلہ تھا. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ یہاں پر اٹیک کرتا ہے شیبہ کے اوپر، اور یہاں پر وہ خود کا حکمرانی شروع کرتے ہیں اور خود کا بادشاہت شروع کرتے ہیں یہاں پر 115 BC میں. یہاں پر جو ایتھوپینز تھے، ایبیسینینز تھے، ان کو رومن ان کا ہیلپ کرتے ہیں. جب انہوں نے رومن نے ازد پر قبضہ کیا تھا، پھر انہوں نے ایتھوپینز کا ہیلپ کیا، مدد کیا، اور ایتھوپینز نے پھر یہاں پر یمن پر قبضہ کر لیا اور یہاں پر خود کا بادشاہیت، اس کو خود کا تخت بنایا اور یہاں پر رول کرنا شروع کیا. یہاں پر بہت بڑا سیلاب آتا ہے 450 اور 451 BC میں، اور یہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف سیلاب کی وجہ سے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو جیوز تھے وہ یہاں پر رول کرنا شروع کرتے ہیں نواز کے نام سے. یہ نواز کے نام کا جیو تھا جو کہ 523 C میں یہاں پر یمن میں رول کرنا، حکمرانی کرنا شروع کرتا ہے. پھر جو کرسچینز تھے نجران میں، جو کہ سعودی عربیہ میں نجران میں رہتے تھے، نواز تھا، اس نے ان کو پریشائز شروع کرنا شروع کیا کیونکہ وہ یمن کے قریب تھا. تو وہاں پر کیا کرتا ہے کہ ان کرسچینز کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم جودیزم ہے اس کو فالو نہیں کرو گے، اگر اس کی پیروی نہیں کرو گے، اس کو اپنا نہیں لوگے تو تمہیں میں جلا دوں گا. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کرسچینز، عیسائی جودیزم کو، یہودیت کو اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، اسے اپنا نہیں لیتے ہیں. تو کیا کرتا ہے کہ نواز ان کو 20,000 سے زیادہ لوگوں کو جلا دیتا ہے. یہ قصہ بہت مشہور ہے، یہ کہانی اسٹوری بہت مشہور ہے. یہاں پر جو رومنز تھے، جو کہ کرسچینز تھے، وہ بہت غصے میں آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایتھوپینز کے ساتھ مل کر ان کا مدد کرتے ہیں. اور پھر جو ایتھوپینز، ایبیسینینز ہیں، وہ ایریت کے لیڈرشپ میں، ایریت کے رہبری میں، جو کہ ایتھوپین تھا، اس کے رہبری میں رومنز کے ساتھ مل کر وہ یمن پر قبضہ کر لیتا ہے اور یہاں پر حکمرانی شروع کرتا ہے. پھر جو ابراہ تھا، جو کہ ایتھوپین کا آرمی تھا، سولجر تھے، ان کے جو لیڈر تھا، پھر ابراہ کیا کرتا ہے کہ جو ایریت کنگ تھا، بادشاہ، اسے مار دیتا ہے، اسے اسیسینیٹ کرتا ہے اور خود اس تخت کو اس پر خود بیٹھ جاتا ہے اور خود بادشاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کسرا آتا ہے اور کسرا جو پرشن تھا وہ اس پر قبضہ کرتا ہے اور یہاں پر پرشنز کا پھر قبضہ تھا. بادھان قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ بادھان اس وقت تھے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. پھر انہوں نے کیا کہ اسلام کو قبول کر لیا. اگر ہم بات کریں ہیرا کی، جو کفا تھا، ہیرا گورنمنٹ، وہاں پر حکمرانی کیسی ہوتی تھی کہ وہاں پر پہلے جو پرشنز تھے اس پر حکومت کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر رومنز، انہوں نے 326 BC میں اس پر اٹیک کیا. پھر اس پر انہوں نے خود قبضہ کیا اور ان پر خود کا حکمرانی چلانا شروع کیا. پھر ان کا جو حکمرانی تھا اس کا نام کنگ آف سیکٹس تھا کہ ان کے جو حکمرانی تھا وہ سیکٹس میں ڈیوائیڈڈ تھے، تقسیم تھے. تو اس کی وجہ سے اس کے جو رول تھا ہیرا پر، اس کو کنگ آف سیکٹس کہا جاتا ہے. پھر یہاں پر کیتانینس آتے ہیں، جو پیپل آف عدنان ہے، عدنان کے اولاد یہاں پر آتے ہیں، اور بہت سارے یہاں پر عربس آتے ہیں. پھر اس کے بعد داشیر جو کہ پرشن تھا، کنگ تھا، وہ یہاں پر آتا ہے اور اٹیک کرتا ہے عربس پر، اور یہاں پر پھر سے پرشن کا رول شروع ہوتا ہے. گریکر میں عربس اور پرشن کا جنگ ہوتا ہے اور یہ جنگ جو عربس جیت لیتے ہیں اور پھر یہاں پر جو ہے نا عربس کا رول شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر سے یہاں پر ازدبا جو کہ پرشن رولر تھا، حکمران تھا، وہ عربس کے ساتھ جنگ کر لیتا ہے اور یہاں پر عرب سے جنگ جیت لیتا ہے. اور پھر یہاں پر جو ہیرا ہے، یہاں پر وہ خود حکمرانی پرشنز کرنا پھر سے شروع کرتے ہیں.
उस वक्त यहाँ पर पर्शियंस हुक्मरानी करते हैं जब खालिद बिन वलीद यहाँ पर आता है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अगर हम बात करें सीरिया की तो यहाँ वहाँ पर सीरिया में रोमन्स, उस पर कंट्रोल रोमन्स का था, लेकिन वहाँ पर रूल हुक्मरानी कौन करते थे? अरब्स करते थे। वहाँ पर कहतानियंस और दूसरे अरब्स करते थे और उनको रोमन्स इस्तेमाल करते थे अपने बेजेंटाइन एम्पायर को, बादशाहत को कायम रखने के लिए। वो उनको अरब्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ उनको लड़ाते थे। फिर वहाँ पर ज़ियाद अल अबूला, उसको वहाँ पर रूलर बनाया जाता है, ये पर्शियन रूलर होता है और वहाँ पर पर्शियन का रूल होता है आखिर तक, उस वक्त तक जब तक वहाँ पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्मरानी शुरू होता है, तो वहाँ पर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं सारे। हिजाज की बात करें तो हिजाज में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का रूल चलता था। आखिरी वफात होने के वक्त तक वहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसका ख्याल रखते थे, उसका गार्डियनशिप करते थे, उसके कंट्रोल में था, उसका देखभाल करते थे। फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 137 इयर्स के एज के थे तो उस वक्त वो गुजर जाते हैं, वफात पाते हैं। फिर उसके बाद उसके बेटों को हुक्मरानी नहीं दी जाती, जो कि अदनानियंस थे, जो कि पीपल ऑफ अदनान, अदनान था और माद था, उसको हुक्मरानी नहीं दी जाती। लेकिन वहाँ पर मोदाद बिन अल जुरहमी, जो कि जरहम का कबीला था, उसका बादशाह था। यहाँ पर जो जुरहम आए थे हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, जब वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटा था तो यहाँ पर वो कबीला इनके साथ रहना शुरू हुआ। वही कबीला, उसका चीफ, उसका सरबराह यहाँ पर उसने हुक्मरानी करना शुरू की मक्के पाक में और उसने इसको खुद का तख्त बनाया, कंट्रोल में किया और यहाँ पर खुद लीडर मीन्स खुद इसका रहबर बना। यहाँ पर जो बुख्त नसर न्यू बेबीलोनियंस थे, बुख्त नसर वो बादशाह था न्यू बेबीलोनियंस के, तो वो क्या करता है कि यहाँ पर मक्के पाक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो अदनान के औलाद थे वो मक्के पाक को बचा लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी दफा रोमन्स के साथ मिलकर बुख्त नसर फिर 587 BC में मक्का पाक पर अटैक करते हैं और इस बार कामयाब होते हैं। तो ये बताया जाता है कि जो माद था अदनान का बेटा, वो और बुरखैया जो कि नबी था, वो दोनों सीरिया की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद जब बुख्त नसर न्यू बेबीलोनियंस का प्रेशर कम होता है मक्का पाक में, तो माद वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो यहाँ पर जुशैम बिन जलहमा की बेटी के साथ, वो मोना, उसका नाम मोना था, उसके साथ वो शादी कर लेते हैं और उससे एक बेटा होता है माद को और वो उसका नाम नजर था। फिर उसके बाद क्या करता है कि जो जुरहम कबीला था वो क्या करता था कि वो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मक्के पाक में आते थे काबा की तरफ, यहाँ पर हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो उन पर क्या करते थे, ये लोग अटैक करते थे। ये जुरहम कबीला ट्राइब उन पर अटैक करते थे और उनसे उनके सामान छीन लेते थे, उन पर जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे। तो इसकी वजह से जो पीपल ऑफ अदनान थे, बकर बिन अब्द मनाफ बिन किनैना, वो कि उन्होंने क्या किया कि खुजा के साथ, खुजे कबीला था अज़हरान में जो कि हिजाज के करीब, मक्के करीब रहते थे, उनके साथ मिलकर उनको जुरहम कबीलों को यहाँ से निकाल देते हैं मक्का पाक से। फिर यहाँ पर जो खुजे कबीला था वो यहाँ पर जो है ना हुक्मरानी करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कुरैश को, जो अदनान के औलाद थे, उनको उन्होंने कुछ इस्तेहकाक दिए, प्रिविलेजेस दिए। उनमें से जो 3 बड़े प्रिविलेजेस थे, इस्तेहकाक थे, वो ये था कि जो पहला इस्तेहकाक ये था कि कबीला था जो कि सुफा के नाम से जाना जाता था। ये क्या करते थे कि जो सुफा थे वो लोगों को अरफात से लीड करते थे, उनकी रहबरी करते थे मुज़दलिफ़ा की तक, और जो उधर सेक्रीफाइसेस होते थे, ईद उल अज़हा पर जो कुर्बानियाँ होते थे वहाँ पर लीड करते थे, उनकी रहनुमाई करते थे और ये उनकी कुर्बानियों की देखभाली करते थे और लोगों की देखभाली करते थे, वो उनकी जो है ना रहनुमाई करते थे। अल-गौथ बिन मुरा जो कि सफ़ा के नाम से जाना जाता है, ये मुदर के बेटे थे। अल-अकाबा में जब पत्थर लगाए जाते थे तो वहाँ पर उस वक्त तक वहाँ पर पत्थर नहीं लगाए जाते थे जब तक जो सुफा का वहाँ पर कोई आदमी बंदा नहीं होता था। और जब फिर सुफा के बाद अल-गौथ बिन मुरा के ट्राइब के कबीले के बाद यहाँ पर सईद बिन ज़ैद मन्नत जो कि तमीम फैमिली से था, उसको ये प्रिविलेज, उसको ये इस्तेहकाक दिया जाता है। जो दूसरी इस्तेहकाक था वो अदवान की फैमिली को दिया जाता है, जो कि कुरैश का फैमिली था, उसको दिया जाता है। उसको ये प्रिविलेज, ये इस्तेहकाक दिया जाता है कि जो मिना से लोग वहाँ पर मुज़दलिफ़ा में वहाँ पर ज़ुल्हज के सुबह को जो कुर्बानी करते थे, फिर
वो अदवान के फैमिली उनको लीड करते थे, अदवान के लोग उनको लीड करते थे और उनको मिना की तरफ वापस लेके आते थे। और जो तीसरा प्रिविलेज था वो तमीम बिन अदी फ्रॉम बनी किनैना उसके फैमिली से था। उसको ये प्रिविलेज दिया गया था कि जो 4 महीने हैं पाक सीक्रेट 4 महीने हैं, जुल्क़दा, जुल्हज, मुहर्रम और रजब, इनमें क्या करते थे कि वो जिन महीनों में जंग को जारी कर सकते थे उसको कर सकते थे, जिन महीनों में वो जंग को बंद कर सकते थे बंद कर सकते थे। तो ये 4 महीने उनके कंट्रोल में होते थे, जो वो करना चाहते थे, हुक्म देते थे, वो लोग करते थे। है कि यहाँ पर जो कुरैश थे वो बढ़ने लगे और यहाँ पर कुरैश के औलाद बढ़ने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कुसै पैदा होता है जो कि किलाब का बेटा था। जब कुसै छोटा बच्चा था तो उस वक्त किलाब मर जाता है। फिर उसके बाद उसकी जो अम्मी थी वो दूसरे आदमी के साथ शादी कर लेता है, राबी बिन हरम के साथ शादी कर लेता है और फिर यहाँ वो सीरिया जाते हैं, मक्का से सीरिया जाते हैं। जब कुसै जवान होता है तो वो फिर मक्का पाक वापस आते हैं। फिर वो हुलैल बिन हबशा के बेटी होबा के साथ शादी कर लेता है और फिर उसके बाद क्या आता है कि हुलैल बिन हबशा वो मर जाता है। फिर उसके बाद जो कुसै बिन किलाब था वो यहाँ पर मक्का पर हुक्मरानी करना शुरू करता है। वो अपना जो हुक्मरानी वो यहाँ पर अपना शुरू करता है। कुसै बिन किलाब था, उन्होंने कुरैश को बहुत इज्जत दी क्योंकि वहाँ पर कुरैश का बहुत इज्जत था, वहाँ पर कुरैश का बहुत जो है ना रिस्पेक्ट था, क्योंकि वो जानते थे ये काबा है वो उनका है। तो गार्डियनशिप, उस काबे का देखभाल और ये सारी चीज़ें किसके अंडर में, कुसै बिन किलाब में रखा, कुरैश के कंट्रोल में। कुसै बिन किलाब ने क्या किया कि उसने नदवा बिल्ड किया, नदवा बनाया। ये नदवा काबा के नॉर्थर्न साइड में है। यहाँ पर क्या करते थे कि यहाँ पर कुरैश और दूसरे कबीले आते थे और यहाँ पर मीटिंग्स करते थे, यहाँ पर मिलते थे और जो प्रॉब्लम्स उनके बीच में होते थे उनको हल करते थे, उनको सॉल्व करते थे। तो इसका जो सदारत कौन करता था, इसका सदारत कुसै बिन किलाब करता था। और बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी जो कि कुसै बिन किलाब के कंट्रोल में थे और बहुत सारी चीज़ें कुरैश के कंट्रोल में थे। पाक जो काबा था वो उसके सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में थे, वो कुरैश के कंट्रोल में थे। और वहाँ का जो सोसाइटी था वो पॉलिटिकली, सियासी तौर पर कैसे काम करता था, पॉलिटिकली कुछ इस तरह से काम करता थे। वहाँ पर 3 किस्म के लोग होते थे। एक किंग होता था, बादशाह होता था, और एक मास्टर होता था जो सरबराह होता था, चीफ होता था, और दूसरा गुलाम होता था। जो किंग सरबराह होते थे उनको इस्तेमाल करते थे, वो उनके कंट्रोल में होते थे। और जो सरबराह होते थे वो क्या करते थे कि अपने गुलामों पर जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, उनसे ज़्यादा काम करवाते थे और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, सारी चीज़ें उनसे करवाते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि जो मास्टर्स थे, जो सरबराह थे, चीफ्स थे, उनकी बहुत इज्जत होती थी। और वो जो किंग्स के सरबराह, अक्सर वहाँ पर सरबराही होती थी, चिफ्टेन सिस्टम होता था निज़ाम, लेकिन उनके वो भी दूसरे कंट्रीज़ के जो फॉर एग्जांपल यमन, सीरिया के कंट्रीज़ के बादशाह होते थे, उनके कंट्रोल में होते थे, वो उनको कंट्रोल करते थे। तो ऐसे ही वहाँ पर जो है ना किंग होता था, मास्टर होता था और स्लेव्स होते थे वहाँ पर। और अगर वहाँ की इकोनॉमी की बात करें कि वहाँ पर माशी तौर पर वो सोसाइटी कैसे काम करता था, वहाँ पर लोग ताजर थे, वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जाते थे, यमन की तरफ जाते थे, सीरिया की तरफ जाते थे और दूसरे इलाकों की तरफ जाते थे और वहाँ पर जो कारोबार करते थे और ऐसे अपने गुजर सफ़र करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो रहवासी थे इस्लाम आने से पहले, वहाँ के लोग क्या करते थे कि जो ताजर यहाँ से गुजरते थे उन पर अटैक करते थे, उनसे उनके सामान छीन लेते थे। अगर यहाँ की सोसाइटी की बात करें कि यहाँ पर कौन से मज़हब को फॉलो किया जाता था, कौन से मज़हब को माना जाता था, यहाँ पर पहले तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिलीजन दीन था, एक ही इस्लाम, उसको फॉलो किया जाता था, वो मज़हब माना जाता था। यहाँ पर जो खुज़े का सरबराह था, उसका लीडर था रहबर अमर बिन लोहे, वो सीरिया जाता है। और जब अमर बिन लोहे उधर जाता है तो वो देखता है कि लोग वहाँ पर दूसरे खुदाओं को पूजते हैं, वहाँ पर लोग जो है ना बुतों को पूजते हैं। तो उसने क्या किया कि वहाँ से ह्यूबल नाम का एक बुत वहाँ से लेके आया और उसको जो काबा है उसके सेंटर, उसके मरकजी जगह पर रखा और फिर लोगों को ये दावत देना शुरू किया कि ये जो ह्यूबल है ये तुम्हारे जो भी तुम्हारे दुआ हैं, तुम्हारे सारी दुआ को कबूल कर लेगा, जो भी तुम इससे मांगोगे वो तुम्हारा कबूल हो जाएगा और ये तुम्हारी दुआ जल्दी अल्लाह ताला के तरफ लेके जाएगा, जल्दी वहाँ पर तुम्हारा दुआ जल्दी पहुँचेगा, तुम्हारा दुआ जल्दी कबूल करेगा और तुम्हारा दुआ ये जो भी तुम इससे दुआ मांगोगे वो कबूल कर लेगा। तो ऐसे ही जो अमर बिन लोहे उनको इन्वाइट करना, दावत देना शुरू किया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना और भी बुत लाने लगे और फिर जो मनत बुत था उसको अल मुशलेल की जगह पर वहाँ पर उसको
लोगों ने इबादत करना शुरू की, और जो अल्लाह था ये भी एक बुत था, उसको लोगों ने ताइफ में वर्शिप करना शुरू की, ताइफ में उसकी बुत परस्ती शुरू की। फिर जो दूसरा अल उज़्ज़ा था उसको लोगों ने नखला में रखा और वहाँ पर उसकी इबादत करना शुरू की, उसकी बुत परस्ती करना शुरू की, उसकी इबादत करना शुरू की। वहाँ पर लोग कुर्बानी करते थे, वहाँ पर लोग जाते थे, अपने लिए बेटे मांगते थे, अपने लिए बहुत सारी चीज़ें उससे मांगते थे, तो वो वहाँ पर जाते थे। और अगर हम ज्यूज़ की बात करें तो जुडाइज़्म यहाँ पर, यहूदियत था वो यहाँ पर कैसे पहुँचता है, जो जुडाइज़्म था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुँचता है कि जब जो बुख्तनसर था उसने 587 BC में फ़लस्तीन पर अटैक किया था, हमला किया था, तो कुछ ज्यूज यहाँ पर आए थे, हिजाज की तरफ, मक्का की तरफ आए थे, यहाँ की तरफ सऊदी अरबिया की तरफ आए थे। फिर दूसरी दफा जब टाइटस ने 70 BC में अटैक किया था फ़लस्तीन पर, फिर ज्यूज, बहुत सारे ज्यूज यहाँ पर आते हैं सऊदी अरबिया की तरफ, यहाँ पर मक्के पाक में और दूसरे इलाकों में वो रहना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर जुडाइज़्म एक बंदे ने लाया था और उसका नाम असद बिन करब था। उसने क्या किया कि अपने प्रीस्ट, अपना जो उसके जो प्रीस्ट थे उनको कहा कि यहाँ पर यहूदियत फैलाना शुरू किया। फिर वहाँ पर लोगों को दावत देना शुरू की और लोगों को यहूदियत जुडाइज़्म की तरफ बुलाना शुरू किया, और लोगों ने जुडाइज़्म यहूदियत को अपनाना शुरू किया। और दूसरा जो क्रिश्चियन था, यहाँ पर ईसाईयत कैसे आता है कि ईसाईयत कुछ इस तरीके से आता है कि एक बंदा, सिमियन नाम के बंदा होता है, वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो है ना क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू करता है। तो यहाँ का जो रिलीजन था, मजहब था, वो मुख्तलिफ किस्म के मजहब से लोग यहाँ पर पॉलीथियस्ट्स थे, लोग यहाँ पर शिरक करते थे, पॉलीथियस्ट्स थे, दूसरे खुदाओं को मानते थे, अल्लाह ताला के साथ दूसरे खुदाओं की शिरक मिलाते थे। और यहाँ पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसके दीन को फॉलो नहीं किया जाता था। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो इस्लाम था उसको फॉलो नहीं किया जाता था। यहाँ पर जो अल्लाह ताला के साथ शिरक किए जाते थे और बुतों को माना जाता था, और जादूगरों की बात मानी जाती थी, और यहाँ पर जो नजूमी थे उनकी बात को मानी जाती थी। और यहाँ पर जो दूसरा मैगनिज्म, यहाँ पे सितारा परस्ती और बहुत मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर लोग रहते थे। सारे मजहब को फॉलो किया जाता था, यहाँ पर बहुत सारे जो रिलीजन थे उनको फॉलो किया जाता था। और यहाँ का जो मजहबी सिस्टम था, निज़ाम था, वो बिल्कुल धर्म भरम था, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अल्लाह ताला के साथ शिरक करना शुरू की और बुत परस्ती करना शुरू की। इवन उन्होंने 360 से ज्यादा बुत बनाए और उनको जो है ना काबा में रखा और उनकी पूजा करना शुरू की, उनकी इबादत करना शुरू की। अगर यहाँ की बात करें कि यहाँ का जो सोसाइटी था वो कैसे काम करता था, यहाँ पे सोसाइटी में हियरार्की चलती थी। हियरार्की का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अमीर बादशाह है या चीफ है या सरबराह है, सरदार है, तो उसका अगर बेटा होगा तो उसका भी पोजीशन, उसका भी मर्तबा वही होगा, उसको भी वही तख्त, वही ताज उसको दिया जाएगा, और उसकी लोग इज्जत करेंगे, उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितने उसके बाप की रिस्पेक्ट करते थे। तो ये उधर हियरार्की चलता था कि उसका बेटा वही पोजीशन हासिल करेगा जो उसके बाप के था, फिर उसके बेटे के बेटे हैं उनको भी वही पोजीशन दिया जाएगा। तो ये चलता था। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि यहाँ पर 4 किस्म के शादियाँ होती थी। वो जो पहला शादी ये था कि जैसे हम आम करते हैं कि मर्द और औरत शादी कर लेते हैं, और जो दूसरा किस्म था वो ये मर्द किसी औरत के साथ शादी कर लेता था, फिर उसके बाद जब वो पीरियड से गुजरती थी, पीरियड्स के बाद वो उस औरत को, उसका जो मर्द था वो उसे दूसरे मर्द के तरफ भेजता था और उसके साथ वो ज़िना कर लेते थी। तो फिर उसको बाद में वो बंदा उसको वापस लेके आता था। फिर जो तीसरी किस्म की शादी थी वो ऐसी थी कि एक औरत होती थी और वो बंदों की गिरोह के साथ, बहुत सारे बंदों के साथ जिना कर लेते थे, और जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन सब मर्दों को वो बुलाती थी, और उसमें से जिसको भी वो चुनती थी वो उस बच्चे का बाप बनता था। और जो चौथी किस्म की शादी ये थी कि जो जिस्म फरोश औरतें थे वो अपने घर के ऊपर फ्लैक्स लगाते थे और लोगों को दावत देते थे जिना करने के लिए, और फिर लोग उनके साथ जिना करते थे। फिर उन सब मर्दों को बुलाया जाता था जब वो प्रेग्नेंट होती थी। जिस्म फरोश औरत जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो वो सब मर्दों को बुलाती थी। फिर उसके बाद जो जादूगर था वो क्या करता था कि वो बताता था कि इसमें से कौन सा इस बच्चे का बाप है। फिर जिस बंदे को भी चुना जाता था वो उसका बाप बनता था। तो इस किस्म की वहां पर क्या होती थी, सोसाइटी चलता था, शादी होता थी। तो वहां पर सोसाइटी बिल्कुल धर्म भरम था, लोग गुमराह हो चुके थे, लोग भटक चुके थे, और लोग वहां पर इस्तेमाल हो रहे थे। और वहां पर इन सारी चीज, वहां पर पॉलीथियज्म, शिरक का सिस्टम था, शिरक का निजाम था, लेकिन उनमें 5 बड़े खूबियां थे। वो बहुत सारे गुनाह करते थे लेकिन उनमें 5 बड़े खूबियां थे। वो कौन सी खूबियां थे? पहला जो खूबी ये था कि वो हॉस्पिटेबल थे, वो बहुत मेहमान नवाज थे। वो मेहमान नवाजी में सबसे आगे थे।
कोई भी बंदा कोई भी होता था वो उसकी जो है ना अपना जान देकर उसकी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करता था, उसका ख्याल रखता था। और इवन वो पोइम्स उन्होंने बहुत सारे नज़म बनाए इस हॉस्पिटेबली मेहमान नवाजी पर। और जो दूसरा चीज़ ये था कि वो वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते थे, वो अपना जान भी देते थे लेकिन अपना वादा पूरा करते थे। तीसरा चीज़ था वो ये था कि सेल्फ स्टीम, उनके खुद के बारे में बहुत रिस्पेक्ट होता था, वो अपने इज्जत के बारे में बहुत सोचते थे, वो अपने इज्जत का बहुत ख्याल रखते थे, अपने बारे में बहुत सोचते थे। वो खुद के रिस्पेक्ट जो खुद का जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, वो उनका हायर था। वो खुद के इज्जत के मामले में कुछ चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करते थे। चौथा चीज़ ये था कि वो डिटरमाइंड थे, वो पुख्ता थे, जो भी चीज़ वो करते थे, फॉर एग्जांपल वो इज्जत के मामले में पुख्ते थे, वो अपनी जान देते थे लेकिन उनका इज्जत चला जाए ये बर्दाश्त नहीं करते थे। और जो पांचवा चीज़ वो उनमें ये था कि फॉरबियरेंस टॉलरेंस, उनमें बर्दाश्त बहुत थी, वो बर्दाश्त चीज़ों को करते थे, उन पर जुल्म करते थे लोग ये वगैरह लेकिन वो बर्दाश्त करते थे। छठा चीज़ ये था कि वो प्योर सिंपल लाइफ जीते थे, सादगी की ज़िंदगी जीते थे। उनमें ये 6 बड़े खासियतें थे। तो इस्लाम आने से पहले अरब में ये होता था और इस किस्म के निज़ाम चलते थे। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।